Very good morning to all the students of class 12th. First of all, I would like you to share this video maximum to the 12th class students. Like this video as well as comment how would you feel, some positive changes or any criticism if you want to give, but should be in a decent manner. And most of it, share this channel maximum so that maximum students can subscribe this channel, as it is related to your biology or the study material of 12th class. So last class we are discussing about development of embryo in monocots and dicots. Now we are starting with apomixis. It is a Greek word which means without mixing. So actually there is no mixing of any, in fertilization we were talking about the fusion of gametes. Now we are not talking about any mixing. It is without any fusion. It is a formation of new individuals directly through asexual reproduction. That means from the somatic cells or the vegetative cells of the parent plant. It is of two types, agamospermy and vegetative propagation. Now what is agamospermy? Agamospermy is a mode of apomixis in which seeds are formed but are asexual in nature. Embryo develops directly without gametic fusion. Embryo develops directly without gametic fusion and asexual in nature, that is they are made up of somatic cells. Seeds are formed. Example is Gramineae, Compositae, Rosaceae, Rutaceae. These are the name of the families in which this agamospermy is found. Now several types of agamospermy is found. First is recurrent agamospermy. In this, embryo sac develops from megaspore mother cell or archisporial cell where meiosis is disturbed. Meiosis is not carried out in proper way. Egg cell is diploid. So here meiosis, when it is disturbed, there is no proper formation of egg cell. Egg cell is diploid. So embryo develops from diploid egg cell without fertilization. Examples of recurrent agamospermy is crapis, bluegrass, allium, onion. Now next one is non-recurrent agamospermy. Embryo arises directly from normal egg cell without fertilization. So egg cell here will be haploid. So embryo formed will be haploid. So haploid parthenogenesis, haploid apogamy is included in non-recurrent agamospermy, and it is rare in occurrence. Rarely it is formed. Next is adventative agamospermy or sporophytic budding. Embryo arises from a cell or a group of cells, either in the nucellus or in the integuments. Embryo arises from the cell or a group of cells. The cells could be from nucellus or from the integuments. Example, oranges and roses. It takes place outside the embryo sac. Definitely it will take place outside the embryo sac, regenerated with accuracy. If it is developed from nucellus or integument, definitely either the nucellus cells will grow into the embryo sac or the integument cell. Regular embryo within the embryo sac may also develop. जो रेगुलर एम्ब्रियो सैक जो नॉर्मल डेवलप हो रहा है वो भी डेवलप हो जाएगा, लीडिंग टू पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन. अब इसमें एक साथ जो है नॉर्मल जो एम्ब्रियो है वो तो है ही, साथ में न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट से भी जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा. सो पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन आ जाएगी जिसमें एक ही फ्रूट में या एक ही हमें जो ओवरी में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक मिल सकते हैं. एग्जाम्पल सिट्रस या ओपनचिया. Now what are the advantages of apomixis in plant breeding? Rapid multiplication of genetically uniform individuals without risk of segregation. Risk of segregation means the division of chromosomes or the separation of characteristics will not take place. Same copy of parental plant will obtain in the next generation.
Hybrid vigor can permanently be fixed in crop plants. Hybrid vigor means if we have performed the cross between two species, then this hybrid quality of plant will be maintained in the next generation और वो परमानेंट हो जाएगी. एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैटरनल इफेक्ट. जितना भी मैटरनल इफेक्ट है प्लांट का, जो मैटरनल प्लांट है, फीमेल प्लांट है, उसका इफेक्ट जो है, उसकी जो करेक्टर्स है, उनको हम एफिशिएंटली एक्सप्लॉयट कर सकते हैं. होमोजाइगस इनब्रेड लाइंस कैन बी रैपिडली डेवलप्ड. जो होमोजाइगस इनब्रेड लाइंस हैं उनको जल्दी से हम डेवलप कर सकते हैं. सो दे प्रोड्यूस सेक्टर्स ऑफ डिप्लॉयड टिश्यूज एंड ओकेशनल फर्टाइल गैमीट्स एंड सीड्स. हमें होमोजाइगस लाइंस की भी शॉर्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वो रैपिडली डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉयड टिश्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं, एज वेल एज फर्टाइल गैमीट्स और सीड्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड. फर्स्ट टाइम इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक इन सिट्रस. अगर ये नेचुरली डेवलप हो रहा है किसी सीड में तो हम उसे स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी कह रहे हैं. इफ़ आर्टिफिशियली उसको हम लैब कंडीशंस में इंड्यूस्ड करवा रहे हैं या अपने जो है लैब मेथड से करवा रहे हैं तो इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी है. हमें कुछ केमिकल से या कुछ रेडिएशन से उसको स्टिमुलेट किया है तो इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी. टू टाइप्स की बात की यहाँ पर. सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें तो अक्रेंस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग. मोर देन वन एग का फर्टिलाइजेशन हो जाए तो हमें सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाएगी. एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज थ्रू स्पोरोफेटिक बडिंग. स्पोरोफेटिक बडिंग अभी हमने पीछे डिस्कस किया. एक्स्ट्रा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन थ्रू द जो सेलस और इंटेग्यूमेंट्स. एग्जाम्पल में ओनियन, ग्राउंडनट, मैंगो, लेमन, ऑरेंज, सिट्रस. सिट्रस में 2 to 40 एम्ब्रियोज होते हैं. वन तो नॉर्मल जो एम्ब्रियो सेक का है वही फॉर्म होगा, रेस्ट जो है वो एडवेंटेटिव है, न्यूसेलस से फॉर्म्ड हो रहे हैं. मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, ऑल द एग सेल्स मे गेट फर्टिलाइज्ड. synergids, antipodals so may also form embryo. synergids और antipodals भी फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेंगे. इसे कहेंगे मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी. सीडो पॉलीएम्ब्रियोनी, many embryos are formed from separate embryo sacs inside an ovule. एक सिंगल ओव्यूल में डिफरेंट एम्ब्रियो सैक्स से एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन, तो सीडो पॉलीएम्ब्रियोनी. क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, if daughter cells of zygote form separate embryo after cleavage. जाइगोट जो है अगर उसमें डिवीजन हो जाए और वो सेपरेट एम्ब्रियो फॉर्म कर ले आफ्टर क्लीवेज, तो दिस इज ऑल्सो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी. नेक्स्ट हम डिस्कस कर ले एंजियोस्पर्मिक सीड्स. मॉर्फोलॉजिकली राइपन्ड ओव्यूल इज सीड. सीड इज अ मैच्योर इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट आर कॉल्ड कर्नेल. जितने भी स्ट्रक्चर्स सीड कोट के अंदर प्रेजेंट है उनको हम कर्नल कह रहे हैं. मैच्योर सीड हैज 3 मेन पार्ट: सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म. सीड कोट आउटर कवरिंग सीड की, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी करते आ रहे हैं. एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, प्रेजेंट और एब्सेंट इन सीड्स. अब उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हमने 2 टाइप के सीड्स बात करने हैं यहाँ पर, नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड्स. नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स उसको एक्स एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड्स भी कह रहे हैं. सीड्स लैक एंडोस्पर्म एट मेच्योरिटी. एब्जॉर्ब फूड मटीरियल्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इज स्टोर्ड इन कॉटिलिडन्स. मेच्योरिटी पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा जब सीड मेच्योर हो जाएंगे, लेकिन इनिशियली क्या होगा, एंडोस्पर्म का जितना भी फूड मटीरियल है वो स्टोर हो जाएगा कॉटिलिडन्स में जाकर. तो डाइकॉट सीड्स भी हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक हैं, उनके एग्जाम्पल ग्राम, बीन, पी, कुकुम्बर. ऐसे मोनोकॉट सीड्स भी मिलेंगे जो नॉन एंडोस्पर्मिक हैं, ऑर्चिस, पोथोस, मनी प्लांट, वेलसनेरिया. ऐसे हम नेक्स्ट बात करें एंडोस्पर्मिक सीड्स की, जिनको एल्बुमिनस सीड्स भी कह रहे हैं. फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म. मेच्योरिटी में भी सीड्स में एंडोस्पर्म मिलेगा आपको. कॉटिलिडन्स बहुत थिन और मेम्ब्रेनस शीट लाइक होंगे. डाइकॉट सीड्स जो एंडोस्पर्मिक हैं, कैस्टर, पपाया, कॉटन, सनफ्लावर. मोनोकॉट सीड्स जो एंडोस्पर्मिक हैं, मेज, राइस, व्हीट, कोकोनट एंड बार्ली. स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन सीड. मेज का साइंटिफिक नेम जिया मेज. ड्राई है, वन सीडेड इंडेhiscence. फ्रूट ऑफ कैरोप्सिस टाइप. पेरिकार्प फ्रूट वॉल फ्यूज विद द सीड कोट. जो पेरिकार्प है ओवरी वॉल वो फ्यूज हो गई है सीड कोट से. कवरिंग ऑफ ग्रेन एनक्लोजेस 2 मेजर पार्ट्स. फर्स्ट इज एंडोस्पर्म एंड सेकेंड इज एम्ब्रियो.
एंडोस्पर्म की बात कर लें, लार्ज स्टार्ची एंडोस्पर्म है, सराउंडेड बाय अ स्पेशल वन सेल थिक लेयर, जिसको एल्यूरोन लेयर भी कह रहे हैं, एल्यूरोन लेयर, फिल्ड विद प्रोटीनेशियस ग्रेन्स, इंपॉर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। तो ये जो प्रोटीनेशियस लेयर है इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जो एल्यूरोन लेयर की बात करिए। एम्ब्रियो देखें, कंसिस्ट ऑफ एन अपर शील्ड शेप्ड स्कूटेलम, अपर शील्ड शेप स्कूटेलम है इसमें प्रेजेंट। मैं आपको डायग्राम भी शो कर देती हूँ। लुक एट दिस डायग्राम, शील्ड शेप स्कूटेलम, ढाल की तरह आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए, दिस वन इज स्कूटेलम। क्लोजली प्रेस्ड अगेंस्ट एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म है उसके साथ क्लोजली प्रेस्ड है। यहाँ देखिए, दिस वन इज एंडोस्पर्म, ये जो अपर पोर्शन है ये एल्यूरोन लेयर से कवर्ड है ना, तो ये क्लोजली प्रेस्ड अगेंस्ट एंडोस्पर्म, ठीक है। हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एंडोस्पर्म टू एम्ब्रियो एट टाइम ऑफ जर्मिनेशन। न्यूट्रिएंट्स इस एंडोस्पर्म से इस यहाँ पर ट्रांसलोकेट करते हैं, तो स्कूटेलम उसमें हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। एपिथेलियल टिश्यू ऑफ स्कूटेलम, इस स्कूटेलम का जो एपिथेलियल टिश्यू है लाइंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एंडोस्पर्म इज बोथ सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव इन फंक्शन। ये जो लेयर है एपिथेलियल सेल की, ये टिश्यू की लेयर हेल्प कर रही है बिकॉज इसमें दो फंक्शन है, एक तो सिक्रेटरी का और दूसरा एब्जॉर्प्टिव। सिक्रेटरी क्या है, कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है इनटू द एंडोस्पर्म विच सिंथेसाइजेस एंजाइम। यहाँ से कुछ हार्मोन सिक्रीट होंगे एंडोस्पर्म में जो कुछ एंजाइम सिंथेसाइज करेंगे। अब वो एंजाइम्स क्या करेंगे, वो उस एंडोस्पर्म में स्टोर न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू द सॉल्युबल स्टेट। सॉल्युबल स्टेट में कन्वर्ट होते ही ये इजीली एब्जॉर्बल होगा। सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय एपिथेलियल लेयर, इस एपिथेलियल लेयर से एब्जॉर्ब हो जाएंगे of scutellum and transfer to the growing embryo. Scutellum is attached laterally to the embryonal axis. ये जो embryonal axis है ये है प्लूम्यूल और रेडिकल का जो embryonal axis है उससे lateral attachment है, ठीक है। So one end of the embryonal axis points toward the pointed end of the grain. ये grain का जो pointed end है, तीखा वाला end होता है pointed end, उस तरफ जो है embryonal axis का radical। इट इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव शीट, ये प्रोटेक्टिव शीट है जिसको हम कॉलराइजा कह रहे हैं। अदर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस का है जो टुवर्ड्स द ब्रॉडर एंड ऑफ द ग्रेन है जिसको हम प्लूम्यूल कह रहे हैं। प्लूम्यूल इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय अ कॉनिकल प्रोटेक्टिव शीट जिसको कॉलेप्टाइल कह रहे हैं। इट इज कैपेबल इन ग्रोथ एंड कवर्स द ग्रोइंग शूट टिल इट पासेस थ्रू द सॉइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड, remnants of style, embryo, endosperm. So this is all about your chapter sexual reproduction in flowering plants. Next हम जो chapter start करेंगे, soon I will be uploading the next video for the next chapter. Till then, read this chapter from the textbook, NCERT textbooks, CBSE textbooks, and prepare well this chapter. Any doubts you can comment me your doubts. I will definitely reply to you all the doubts with the solutions. So all the best. Try prepare this chapter very well. Thank you very much.